Am I audible you clearly? Okay, today we will see this alcohols and anti-epileptic drugs or anti-convulsant drugs. So first we will try to understand the pharmacology of alcohols, different type of alcohols, different type of alcoholic beverages, then metabolism of alcohol, then we will understand actions of ethanol on the human body, okay, types of alcoholic beverages. Okay. अल्कोहलिक बेवरेजेस कितना होता है. You might know this alcohol is prepared by or alcohol is fermented. It is a fermentation product of your sugars. So alcohol is fermented from the sugars present in the grains and as well as molasses. So you know that आपके यहाँ पे शुगर फैक्ट्री होगा तो उसमें जो मोलेसिस निकलता है उससे डिस्टिलरी होता है, उसके अटैच में जो शुगर फैक्ट्री होता है उसको डिस्टिलरी अटैच होता है. तो जो भी मोलेसिस बनता है शुगर केन से जो जूस निकल के बाद में जो बचता है वेस्टेज, ओके, सो दैट वेस्टेज इज नोन एज मोलेसिस एंड फ्रॉम दैट मोलेसिस द फर्मेंटेशन ऑफ दैट मोलेसिस will give you alcohol. Okay, so alcohol is nothing but the fermentation product of your sugars. So what happened? So there is one enzyme known as zymase. Okay, so this enzyme convert sugar into alcohol. So sugar is the raw material that is converted into alcohol by this enzyme zymase. उनको बोला है, टाइमिंग दिया है मैंने, टाइमिंग के ऊपर ही आना चाहिए ना. लवकर येत चला, टायमिंगला येत चला, कारण काय आहे डिस्टर्ब होतं बाकी. तो टायमिंग दिलेला असतो आपण ग्रुपमध्ये. सो आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट एव्हरीबडी प्लीज. सो अल्कोहोलिक बेवरेजेस, ओके, सो अल्कोहोल इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen. So this alcohol is prepared in the various distilleries. Okay, it is fermentation product of your sugar. Sugar is converted into alcohol by one enzyme known as zymase. So zymase will convert sugar into alcohol. So इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है. So enzyme which convert sugars into alcohol, zymase. Okay, so you might have seen जी गावठी दारू असतात कच्चे हात भट्टी जो ज्याला म्हणतात आपण. सो आपने न्यूज़ देखा होगा कि यहाँ पे गावठी दारू को पीने की वजह से 10 लोगों को पॉइजनिंग हो गया. सो व्हाट हैपन्स? सो इन द रॉ अल्कोहल, सो पीपल यूज टू फर्मेंट अल्कोहल फ्रॉम जैजरी. जो गुड़ होता है उससे वो फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाते हैं. वैसे तो बहुत सारा चीज़ है कि जिससे फर्मेंटेशन करके आप अल्कोहल बना सकते हो. यू कैन फर्मेंट योर एप्पल फ्रॉम एप्पल. ऑल हिमाचल प्रदेश में जितना भी डिस्टिलरीज है, हिमाचल प्रदेश, बद्दी, एवरी beverage, okay, every alcoholic beverages which is distilled from Himachal area, so they belongs to your apple से ही होता है वो. So sugar present in the fruits or sugar is converted into alcohol with the help of zymase enzyme. Remember this, even using jaggery a raw alcohol is prepared, and during that preparation what happens, sometimes instead of generation of ethanol, methanol is also generated and that methanol causes the poisoning. Okay, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आता है कि यहाँ पे गावठी दारू पीने की वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों को ये हो गया, पॉइजनिंग हो गया या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया. ठीक है. सो गावठी दारू पीने की वजह से क्यों मरते आदमी? बिकॉज इन द रॉ अल्कोहल समटाइम्स देर इज जनरेशन ऑफ इथेनॉल. ओके, सो इथेनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट जनरेशन. ओके, इथेनॉल इज सिंथेसाइज्ड, इथेनॉल इज प्रिवेंटेड एज अ मेजर प्रोडक्ट. But sometimes due to inappropriate process or inappropriate condition, what happens? There is also sometimes formation of methanol, and if methanol is formed, so that will cause poisoning. ठीक है, in the raw alcohol. So याद रखना है आपको, sugar is converted into alcohol with the help of enzyme known as zymase. There are different type of alcoholic beverages. You know that most of the students they might know, they might have drinking beer, they might have drinking whiskey and all that. So types of alcoholic beverages. So first होता है आपका malted liquor. So first one is known as a malted liquor. Okay, so in that it is obtained by fermentation of germinating cereals. Okay, it is undistilled and alcohol content of this malted liquor is around 3 to 6%. Alcohol content is around 3 to 6%. You can see beer. Okay, beer will have up to 10% of alcohol content. So malted liquor means they are nothing but the fermentation product. Okay, it is a fermentation done by using germinating seeds, cereals.
it is undistilled alcohol. Okay, it is not a pure, but it is generated alcohol, the malted liquors alcohol. Okay, so in the beer it may be around 10%, 8 to 10% alcohol the beer may. Then wines, what do you mean by wines? So alcohol, again alcohol, that is by fermentation process. So alcohol generated by fermentation of sugar present in the grapes, so mostly from the fruits and other fruits like your apple is there, and other fruits are also there. So apple, grapes. Okay, alcohol that is used, it is generated by fermentation of natural sugars present in the grapes and other fruits. So again it is a undistilled. इन द रेड वाइन जो होता है उसमें अनडिस्टिल होता है. शैम्पेन में भी होता है 12 to 16% अल्कोहल. शैम्पेन है ना, आप बर्थडे के दिन में या फिर कोई आपका सक्सेस हो गया तो आप शैम्पेन खोलते हो. शैम्पेन खोलना मतलब उसमें क्या है, 12 to 16% अल्कोहल है. नाउ स्पिरिट्स, सो व्हाट डू मीन बाय स्पिरिट? सो अल्कोहल विच इज डिस्टिल्ड आफ्टर द फर्मेंटेशन. So okay, after the fermentation of alcohol, the pure alcohol is distilled out. Now that is known as spirit. Pure alcohol after fermentation, so it is distilled out. Distillation होता है उसका, and pure alcohol you are going to get, and that alcohol is known as a spirit. So it is present in the rum, whiskey, brandy, vodka. So around 40 to 55% alcohol content is there. rum में, whiskey में, brandy में होता है 40 to 55% अल्कोहल. ठीक है. बियर में होता है अराउंड 10 to 12% अल्कोहल. ठीक है. अगर माइल्ड बियर है तो 10%, स्ट्रॉन्ग बियर है तो 12% भी होता है. ठीक है, 8 to 12%. सो मोस्ट ऑफ द माइल्ड बियर में 8 to 10% होता है, एंड स्ट्रॉन्ग बियर में 12% होता है. तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो आप मुझ पर ही शक करने लोगे. ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मैं बोलता नहीं अभी. अगेन वाइन्स में क्या आता है कि वाइन्स में अगेन इट इज़ ऑल्सो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल. सेल्फ जनरेटेड मीन्स फर्मेंटेशन of natural sugars present in the grapes, apples and other fruits. Okay, so again it is a undistilled, and wines consist of red wine, champagne, around 12 to 16% alcohol is there. Okay, so alcohol is also generated in some Ayurvedic preparations, for example Asava and Arista. In that self generated alcohol is there, so not more than 4%. So limit है उसका, not more than 4%. Now spirit means what? Alcohol is distilled after the fermentation of, okay, fermentation. So fermentation of fruits or from sugar and etc. So in the rum, whiskey and brandy, vodka, so it will have around 40 to 55% alcohol content. In India, all brands are till licensed up to 42.8% volume by volume और 37% weight by weight of alcohol. इंडिया में इससे ज़्यादा अल्कोहल जो है ना वो ब्यूरेजेस में नहीं होना चाहिए. विस्की में या ना रम में, ना जिन में, ना वोडका में, है ना. ऐसा आप बोलते हो ना सर, इंपीरियल ब्रू, रॉयल स्टैग, तो इसमें सब मेरे को ब्रांड नेम भी मालूम है, क्योंकि ये दिन भर वही तो काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने का काम करते हैं. कौन? एक्टर्स. रॉयल स्टैग, बैक पाइपर, है ना. जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर, क्या होगा उनको ही मालूम है क्या. सो स्पिरिट में होता है अराउंड 40 to 55% अल्कोहल, बट इन इंडिया so alcoholic beverages which are licensed up to 42.8% volume by volume and 37% weight by weight containing alcohol. Now what is meant by absolute alcohol? This is term, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. absolute alcohol is nothing but the 99% of alcohol weight by weight. alcohol 99% alcohol अगर है weight by weight तो उसको बोलेंगे अपन absolute alcohol. and absolute alcohol is prepared by one method known as anybody किसी झालं ना तुमचं डिस्टिलेशन एका बॅचचं डिस्टिलेशन बाकी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळून जाईल ते. हे असे लोक आहे ना परेशान करतात. म्हणजे एक तर जॉईन करायचं ना, रिक्वेस्ट केली ना की 2 मिनटं थांबायचं पण नाही. म्हणजे त्याला एवढं काय घाई आहे काय मी, म्हणजे लगेच गेला तो, मला इकडनं तिकडं स्विच होईपर्यंत तो गेला. म्हणजे फक्त मला परेशान कसं करायचं त्यांना ते पक्क माहिती. आता मी त्याला ॲडमिट करत नसतो. ठीक आहे, टाईम कशाला दिला आहे. सो ॲब्सोल्यूट अल्कोहोल इज नथिंग बट द 99% वेट बाय वेट अल्कोहोल, and it is known as a dehydrated alcohol. Okay, it is known as a dehydrated ethanol. It is also known as a rectified spirit. 90% weight by weight of ethanol is present. Now in India there is a one term, proof spirit. So alcohol percentage is described in this term, proof spirit. तो अल्कोहल का जो प्योरिटी है सो वो किसके बेसिस पे दिया जाता है. तो अल्कोहल प्योरिटी इज denoted by proof spirit term.
व्हाट इज प्रूफ स्पिरिट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. दिस प्रूफ स्पिरिट टर्म यू विल आल्सो फाइंड इन द योर जूरिस्प्रूडेंस बुक. जैसे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो होता है उसमें प्रूफ स्पिरिट आ जाता है. सो व्हाट इज प्रूफ स्पिरिट? सो प्रूफ स्पिरिट 100% प्रूफ स्पिरिट. सो इसके ऊपर भी एक कहानी है. जब पुराने ज़माने में क्या था, तो अल्कोहल का प्योरिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, जो गन पाउडर होता है, गन पाउडर, ओके, गन पाउडर मतलब जो बारूद होता है, बारूद के ऊपर अल्कोहल उसको डालते थे और उसको इग्नाइट करते थे, उसको जला देते थे. तो अगर वो पूरा जल गया सो इट इज़ 100% प्रूफ. सो प्रूफ स्पिरिट वो पुराना ज़माने में था. लेकिन आजकल क्या है कि प्रूफ स्पिरिट मीन्स 57.1%, ओके, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल और 59.29% वेट बाय वेट इथेनॉल. तो ये प्रूफ स्पिरिट का डेफिनेशन आपको पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये. सो प्रूफ स्पिरिट मीन्स व्हाट? 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल और 49.29% वेट बाय वेट इथेनॉल. सो इट इज नोन एज अ प्रूफ स्पिरिट. इसको बोलते हैं प्रूफ स्पिरिट. सो प्रूफ स्पिरिट इज द टर्म. It was used in the ancient era. Okay, they used to check the quality of your alcohol by igniting that alcohol using gunpowder. Gunpowder में वो ignite कर देते, उसको बोलते थे proof spirit. तो अगर पूरा ignite हो गया तो 100% proof है. So proof spirit. Okay, you have to remember this. Methylated spirit. Methylated spirit is known as a denatured spirit. Methylated spirit is known as a denatured spirit. डीनेचर्ड स्पिरिट किसको बोलते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट. मिथाइलेटेड स्पिरिट इज डीनेचर्ड स्पिरिट. अगेन इट हैज 95% ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल. इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस 5% मिथेनॉल. इट इज अनफिटेड फॉर ड्रिंकिंग. ये अनफिटेड होता है. नहीं तो वो भी कोरोना वायरस के इशू में देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सैनिटाइजर बनाया, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, बहुत प्रोडक्शन हुआ. तो कुछ लोगों ने वो भी चालू किया ड्रिंक करना. तो उससे क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाए. बिकॉज मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिट इज नथिंग बट द 95% ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस 5% ऑफ मिथेनॉल. सो दिस मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिट, इट इज नॉट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. नाउ देयर इज वन फॉर डीनेचुरेशन ऑफ स्पिरिट, वन अल्कलॉइड इज यूज्ड नोन एज अ ब्रूसिन. जो स्टिकनेस नक्स भूमिका होता है उसमें एक अल्कोलाइड होता है, ब्रूसिन, स्टिचनिन एंड ब्रूसिन. सो ब्रूसिन इज यूज फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. वो आप कौन से में देख लेंगे उस टाइम पे. ओके, फार्माकोलॉजी ऑफ इथेनॉल. यू हैव 2-3 टाइप ऑफ अल्कोहल्स इन योर, you have 2-3 type of alcohol. Ethanol is there, methanol is there, isopropyl alcohol is there, right? So ethanol is nothing but the CH2, okay, CH3CH2, okay, OH, that is a methanol. Okay, ethanol. Methanol is the CH2OH, that is a methanol. Sorry, CH3OH is the methanol, CH3CH2OH is the ethanol. Okay, now pharmacological action of ethanol. ठीक है, तो देखो ड्रिंक करने के बाद में क्या क्या होता है. So pharmacological actions of ethanol. So it has a different action. It is seen as depressant drug. Okay, so initially it will stimulate your sinus for a certain period. After that there is a depression. Okay, so local action. So locally it will act as a rubefacient. So when you apply locally ethanol, so it will act as a rubefacient. Then it is a counter irritant. It is also pain relieving, counter irritant, and ethanol is also antiseptic locally. Okay, when you apply ethanol locally on your skin, so act as a rubefacient, counter irritant and antiseptic. CNS के ऊपर क्या एक्शन है? एक्शन ऑन CNS. So it has a depressant action on CNS. It produces hallucinations. Hallucinations means okay, hallucination मतलब क्या है? So hallucination means perception without stimulus. परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस. आपको कोई स्टिमुलेशन नहीं कर रहा है, आपको कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, या फिर आपको कोई टच नहीं कर रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे बुला रहा है, या गाड़ी बुला रही है, सिटी बज रही है, या फिर आपको कोई टच नहीं कर रहा है, फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं मुझे टच कर रहा है. आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि फॉलो कर रहा है. सो hallucinations. ओके, देन एक्साइटमेंट एंड प्रमोट द एक्शन ऑफ GABA. ओके, सो it promote or it facilitate the action of GABA. So that's why it is a CNS depressant. It inhibits the NMDA receptor. So NMDA receptor is stimulatory and
NMDA मीन्स N methyl deaspartate, okay, उसका रिसेप्टर होता है. So NMDA is nothing but the stimulatory, so it didn't beat that. Then it augments the level of 5-HT3. 5-HT3 का लेवल भी बढ़ा देगा. Then what is the action of alcohol or ethanol on the CVS? So cutaneous vasodilation, ये क्या करेगा आपका पेरिफेरल आपका जो सरफेस ब्लड वेसल है उसको डायलेट करेगा. So it causes the cutaneous vasodilation in the small doses. Okay, and that's why आप ड्रिंक जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा. So because of the cutaneous vasodilation, okay, it dilate the cutaneous blood vessel, and because of that there is a warm sensation or warm sense. In moderate doses it causes the tachycardia, ये आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा. Moderate dose, increase in the blood pressure due to increased muscular activity and sympathetic stimulation. Larger dose of alcohol can cause directly मायोकार्डियल एंड वैसोमोटर सेंटर डिप्रेशन. तो अगर ज़्यादा डोज लिया अल्कोहल का, ज़्यादा ड्रिंक किया अल्कोहल का, तो आपका मायोकार्डियम जो है हार्ट का वो सप्रेस हो जाएगा, वैसोमोटर सेंटर जो है वो सप्रेस हो जाएगा. व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनॉल ऑन जीआईटी? जीआईटी के ऊपर क्या एक्शन है? सो इन द लो कॉन्सेंट्रेशन इट प्रमोट द एसिड सिक्रेशन. तो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल ड्रिंक करेंगे सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द एसिड फॉर्मेशन. एंड उसीलिए बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा, सुना होगा, अल्कोहल थोड़ी मात्रा में ले लो तो भूख बढ़ती है. लेकिन इनिशियली वो थोड़ी मात्रा में लेता है, लेकिन बाद में फिर चालू हो जाता है, फिर बाद में फिर वो ख़त्म ही नहीं होता उसका. तो ड्रिंक नहीं करना है. सो इन द जीआईटी इन अ लो कॉन्सेंट्रेशन इट स्टिमुलेट द एसिड फॉर्मेशन. इन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इट डिक्रीजेज द एसिड फॉर्मेशन. ठीक है, तो कम मात्रा में अगर इथेनॉल लेंगे आप तो एसिड फॉर्मेशन होगा, आपको भूख बढ़ेगा, आपको एपेटाइट स्टिमुलेशन होगा. अगर ज़्यादा मात्रा में देंगे तो क्या होगा? डिक्रीज इन द एसिड इन द स्टमक. ज़्यादा मात्रा में यूजलेस है. नाउ इट कॉजेज द इरिटेशन एंड वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, म्यूकोजल कंजेशन इन द जीआईटी. गैस्ट्राइटिस भी कैसा, ज़्यादा अल्कोहल लेके तो वोमिटिंग होगा आपको. ठीक है, गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी. ओके, म्यूकोजल कंजेशन. ओके, इन द लीवर में क्या होगा? व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनॉल ऑन लीवर? क्रॉनिक यूज ऑफ लीवर विल कॉज लीवर डैमेज. बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो लीवर डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द एस्टेल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म. इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना इथेनॉल का, सो इथेनॉल इज मेटाबॉलिज्ड बाय वन एंजाइम नोन एज फर्स्ट इट इज मेटाबॉलिज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एस्टेल्डिहाइड एंड देन मेटाबॉलाइज्ड बाय aldehyde dehydrogenase. So acetaldehyde is converted into acetic acid. So accumulation of acetaldehyde in the liver that causes the liver damage. Okay, so causes the inflammation of hepatic cells known as a alcoholic cirrhosis. अगर liver cell जो है ना उसका inflammation करता है known as a alcoholic cirrhosis. Alcoholic cirrhosis causes the inflammation of hepatic. Okay, causes the inflammation of hepatocytes. Recently मेरा एक close friend है, सो उसके फादर की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस. अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस. हॅलो, हा सर, एकदा ते लोकेशन टाका ना लाईव्ह तुमचं, म्हणजे कसं येत आहे ते घरी. तुम्ही किती वाजता येत आहे? आता निघू का मग थोडंसं 1-2च्या नंतर येऊ? आता 1च्या नंतर या ना. आता लेक्चर, कारण मी तुम्ही म्हणले मी सकाळी येईल, त्यामुळे मग मी लेक्चर घेणार नव्हतो, पण तुम्हाला सकाळी फोन केला तुम्ही नाही, ते झालं असं सर की मला यायलाच इथं 10 वाजता. नाही ठीक आहे ना, मग तुम्ही एक वाजेपर्यंत 12:30च्या नंतर या ना. हा, मग 12:30-1च्या नंतर येऊ. मी टाकून देतो लोकेशन, काय अडचण नाही, मी लेक्चर घेतो. लोकेशन टाकून द्या. हो. तर आता तुमच्यासाठी जो ज्याचा फोन होता त्याचं नाव आहे ओमकार देशमुख. सो जिसका फ़ोन था अभी उसका नाम था, एम आई ऑडिबल टू यू? ऑडिबल है क्या? सो जिसका अभी फ़ोन था वो उसका नाम है ओमकार देशमुख एंड वो अभी नायपर मोहल्ले में प्रोसेस केमिस्ट्री कर रहा है. दिस ईयर ही विल पास आउट. So in GPAT 2021, okay, so 21 में उसका ऑल इंडिया रैंक था 80. ऑल इंडिया रैंक 80 was there and in 21 he was in a थर्ड ईयर. फोर्थ ईयर में उसने फिर से GPAT दिया, उसका रैंक आया. तो नाइपर दिया, उसमें भी रैंक आया. अभी वो MS अभी वो नाइपर मोहल्ले में प्रोसेस केमिस्ट्री कर रहा है. और रिसेंटली वो कल ही यहाँ पे मतलब वहाँ से निकला था, वो 2 दिन पहले. मेरे को फ़ोन किया था उसने 2 दिन पहले, सर मैं आने वाला हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फिर से. तो 2-3 बार वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, बुक्स वगैरह लेके, मतलब सब कुछ. तो अभी आ रहा है आज. तो कि उसका एक तो छोटा सा अपना हाउस होल्ड टाइप एक फेलिसिटेशन करूँगा मैं, और बाद में उसको जाए, क्योंकि उसको
कॉलेज वालों ने बुलाया 2 साल के बाद में उसकी जैसे रैंक आया नहीं कॉलेज में उसका किसी का, तो उसको बुलाया अभी आप आ जाओ क्योंकि एडमिशन का टाइम है ना। तो देखो आपका जब तक आप सक्सेस नहीं होते आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप सक्सेस एक बार आपको मिल गए ना, एक बार आप हो गए ना, मतलब ये भी बहुत बड़ा सक्सेस नहीं, जीपैट क्वालिफाई किया है मतलब बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है आपके लिए, उतना एक स्टेप का सक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अभी कॉलेज वालों ने बुलाया कि आ जाओ आप, तो आपका वो आप पहले से नहीं हुआ, मतलब ऐसा होता है। अभी ये नाइपर मॉल से प्रोसेस की मिस्टेक कर रहा है, लेकिन वो मुझे टाइम टाइम कॉल करता है, सर मुझे ये कर रहा हूँ मैं अभी नाइपर मॉल में, अच्छा है प्लेसमेंट भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। तो अभी सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन कर रहा है इन एडिशन टू हिज मास्टर्स। वहाँ पे प्रोसेस केमिस्ट्री में एमएस कर रहा है वो, कहाँ पे मॉल में, बट स्टिल वो क्या कर रहा है कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है। एंड ही यूज टू स्टडी एटलीस्ट 6 आवर 8 आवर, मतलब मैंने कभी किसी को देखा नहीं 6 आवर 8 आवर स्टडी करते, लेकिन ये बंदा 6 आवर 8 आवर स्टडी करता है। और इसलिए तो वो आप बोल रहा है कि सर मैंने कुछ नहीं आ चुके हैं, जीपैट मतलब कुछ नहीं है, नाइपर मतलब कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। अभी ये जैसे घर वालों ने बोला है कि ले ले एडमिशन, तो लिया है, तो प्रोसेस केमिस्ट्री करूँगा मैं वहाँ पे और प्लेसमेंट भी लूँगा, लेकिन सर मैं प्लेसमेंट लेने के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने भी उसको बोला है कि आप मत करो, आपको अगर सिविल सर्विस में इंटरेस्ट ना तो वही करो। अभी वो प्रिपरेशन करा है, उसको फीस नहीं था तो उसने मुझे पूछा था सर मेरा फीस भरना है क्लासेस का, क्या करूँ पैसा नहीं है। मैंने उसका हेल्प किया था, अराउंड 25,000 उसको भी दिया था। हाँ ऑब्वियसली उसने वो विद इन 3 मंथ्स मुझे रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का इंटरव्यू लेके उसको अमाउंट दे के इंटरव्यू लिया था नहीं। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली अगर हेल्प आए तो मैं हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो सके। मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा रईस नहीं हूँ। ठीक है, तो वो अलग बात है, चलो बात में। सो लीवर में क्या करेगा, अल्कोहल कॉजेज द लीवर डैमेज बिकॉज ऑफ acetaldehyde, because alcohol ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase and later on because of the metabolism alcohol dehydrogenase convert ethanol into acetaldehyde and that acetaldehyde is converted into acetic acid later on by aldehyde dehydrogenase. So alcohol, due to chronic use of alcohol, it is a liver damage and causes the inflammation of hepatic cells. It is known as alcoholic liver cirrhosis. And recently one of my close friend's father, they died because of the liver cirrhosis. Okay, और ये लिवर cirrhosis जो है ना, जब तक आपका लीवर 50% खराब नहीं हो जाता, सो जब तक आपका 50% लीवर खराब नहीं होता तब तक लिवर cirrhosis डायग्नोस नहीं होता। एंड एक बार डायग्नोस हो गए ना लिवर cirrhosis, आपको इमीडिएटली बंद करना है। लिवर cirrhosis डायग्नोस हो गया, इमीडिएटली आपको देखना ही नहीं, उसके पास सोचना भी नहीं, आपने सोचना भी नहीं कि इथेनॉल लेना है या फिर ड्रिंक करना है। लिवर cirrhosis डायग्नोस हो गया, सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी थोड़े दिन भी कंटिन्यू किया, आप बोलते हो क्या होगा, कुछ नहीं होता, बाद में इतना मतलब एक तो बाद में लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर मिलता नहीं। ठीक है, वेटिंग पे दे लो, सो 1000 वेटिंग, 100 वेटिंग, 200, लीवर मिलता नहीं। और मिल भी गया तो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा इसका गारंटी नहीं। अगर हो भी गया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल तो आपका बॉडी उसके एक्सेप्ट करेगा, इसका गारंटी नहीं। और एक्सेप्ट भी किया फिर भी 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सो अल्कोहल इज़ वेरी डेंजरस टू योर लाइफ, सो डोंट ड्रिंक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का ड्रिंक नहीं करना चाहिए आपको। एंड उसके बाद में फिर से आपको इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, सो इट कॉजेज द लिवर सिरोसिस, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ फ्री फैटी एसिड। So as alcohol also increases the synthesis of free fatty acids, so your free fatty acid in the plasma will increase and that leads to obesity. काय मूर्ख माणूस यार कोई। 11 बजे लेक्चर था, अभी 11:15 बजे। याद करते जाओ, टाइम पे आते जाओ। सभी लोगों से ये निवेदन है मेरा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एडमिट ही नहीं करूँगा किसी को भी। यार टाइम दिया है तो क्या होता है, स्विच करना है, फिर ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। टाइम दिया है ना, लेक्चर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेक्चर करना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लेक्चर लेना है, भले ही मुझे कुछ भी हो। मैं बेड मतलब मैं अगर ले नहीं सकता तो मैं सो के भी लेक्चर लूँगा आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि लेक्चर करना है। ठीक है, लेक्चर करना है आपको मतलब आपको नहीं बोल रहा मैं, सभी लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इंक्रीज इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। देन स्केलेटल मसल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या एक्शन है इथेनॉल का। सो इथेनॉल causes the myopathy means myopathy,
इट डैमेजेस योर स्केलेटल मसल बिकॉज ऑफ द क्रोनिक अल्कोहलिज्म. सो आपका मसल कम हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, क्रोनिक मायोपैथी. देन अल्कोहल फॉलोज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इट फॉलोज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, दो अल्कोहल गिव हाईएस्ट एनर्जी. अल्कोहल देते हैं आपका नियर अबाउट 7 कैलोरीज पर मोल. अल्कोहल गिव्स 7 कैलोरीज पर मोल as compared to carbohydrate and protein. Carbohydrate gives 4 okay calories per mole. Protein also gives 4 calories per mole and lipid gives 6 calories per mole. ओके, तो अल्कोहल का होता है 7 कैलोरी, लिपिड देता है आपको 6 कैलोरी पर मोल, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 4 कैलोरीज पर मोल. बट स्टिल अल्कोहल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड. अल्कोहल ये क्या है, फूड नहीं है. बिकॉज दो अल्कोहल विल गिव यू ए हाइस्ट कैलोरी इन टर्म्स ऑफ calorie, but the calories are useless. Why they are useless? Because alcohol, though it gives the calorie, so that is unusable calorie. Okay, and also it depresses your CNS. CNS का depression करता है. So alcohol cannot be considered as a. Next is your intoxication. If there is a overdose of alcohol, what happen? Alcohol poisoning. If there is a overdose of alcohol, that is known as alcohol intoxication or alcohol poisoning. So in that condition, so you have to reverse that alcohol poisoning. Okay, what are the drugs? So remember, naltrexone is a opioid analgesic. So naltrexone is a opioid antagonist. Naltrexone क्या होता है, opioid antagonist होता है. ये it is antagonist to the morphine. So poisoning of morphine is also treated by naltrexone. Naltrexone is a drug approved by US FDA for the urgent and comprehensive treatment of program of alcohol dependence. Acamprostate, topiramate also can be used. So topiramate is an anti-epileptic drug which can be also used. Acamprostate. अल्कोहल का ज़्यादा अगर पॉइजनिंग हुआ है, so there is intoxication of alcohol, so naltrexone immediately you have to use. For the chronic dependence, if alcohol का chronic dependence है, again you should know me. Okay, so in case of chronic dependence है, so disulfiram is used. Disulfiram एक नाम का ड्रग होता है. So it is known as anti-abuse. Disulfiram is known as anti-abuse. Now disulfiram can be used in the alcoholic dependence, and the treatment should be carried out in the hospital only. Why? Because the disulfiram is nothing but the aldehyde dehydrogenase inhibitor. ओके, इथेनॉल इज मेटाबोलाइज्ड बाय फर्स्ट. पहले इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस. तो इथेनॉल का कन्वर्जन करता है एसिटाइलेट में, कौन, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस. ठीक है, एक और जो एसिटाइलेट बना है उसका कन्वर्जन होता है एसिटिक एसिड में, और वो कौन करता है, अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस. नाउ डाइसल्फिराम इज नथिंग बट द अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस इनहिबिटर. So what will happen? So due to inhibition of aldehyde dehydrogenase, so acetaldehyde will not be converted into acetic acid. So there is an accumulation of acetaldehyde in the body, and that accumulation increases the blood pressure, sweating, it causes the vomiting, increasing the heart rate, okay, then vertigo, okay. So patient may die, okay. So that's why treatment of alcohol dependence is carried out in the hospital. ठीक है, तो देखो जो जिनका अल्कोहल का लत लग चुका है उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं. हॉस्पिटलाइज करने के बाद में क्या करते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज करते हैं वो पेशेंट को. पहले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर सुबह सुबह क्या करता है, डाइसल्फिराम का टैबलेट देता है या फिर इंजेक्शन देता है. ठीक, इंजेक्शन तो नहीं, टैबलेट ही होता है. डाइसल्फिराम टैबलेट इज गिवन नोन एज एंटी-एबोस, एंड उसके बेड के साइड के ऊपर, मतलब जो होता है ना वहाँ पे शेल्फ, तो उसके ऊपर वहाँ पे अल्कोहल का ड्रिंक लग देते. मतलब ये उसको तो लत लग चुका है ऑलरेडी, डाइसल्फिराम तो ऑलरेडी दिया है उसको. उसके बाद में वो क्या करता है, वहाँ पे अल्कोहल का बोतल दिख गई, बोतल लेता है और ड्रिंक करना चालू करता है. जैसे वो ड्रिंक करता है कुछ देर के बाद में, जैसे अल्कोहल लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, ब्लड में. सो व्हाट विल हैपन, सो दिस डाइसल्फिराम एज इट इज अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस इनहिबिटर. सो अल्कोहल का जैसे वो ड्रिंक करता है वो अल्कोहल मेटाबोलाइज होता है. अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड बाय अल्डिहाइड, अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस and converted into, so alcohol means ethanol, okay. So ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase converted into acetaldehyde, and acetaldehyde is later on converted into acetic acid by aldehyde dehydrogenase.
but this disulfiram inhibit the early dehydrogenase and that leads to accumulation of acetaldehyde in the body and which causes the increase in the blood pressure, vomiting, tachycardia, palpitation, then sweating, etc. etc. पेशेंट को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, जब मैं पहले दारू पीता था तो वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ अभी दारू पिया तो मुझे घबराहट हो रही, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वोमिटिंग हो रही है, मुझे डायरिया हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, टैक्यकार्डिया हो रहा है. ठीक है, जब भी वो दारू पीगा वैसा ही हुआ. क्यों? क्योंकि उसको डाइसल्फाम दिया है. डाइसल्फाम क्या करता है? इनहिबिट द अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस. उसके बॉडी में एसिटाइलडेट लेवल बढ़ जाता है और बिकॉज ऑफ दैट एसिटाइलडेट उसको सिम्टम्स आ जाते हैं. फिर वो क्या सोचता है कि यार नहीं यार, जब भी मैं पीता हूँ मेरे को ऐसा तकलीफ होता है, फिर वो बंद कर देगा. सो एंटी-एबोस वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है. सो रिमेंबर, naltrexone is approved by US FDA for comprehensive treatment program for alcohol dependence. Acamprostate and topiramate can also be used. Now next आता है methanol. So ethanol is known as a sugar alcohol. Remember, methanol is known as a wood alcohol. Ethanol is known as a sugar alcohol and this methanol is known as a wood alcohol. Now it is metabolized by alcohol dehydrogenase first and converted into methanol is converted into formaldehyde, okay, by alcohol dehydrogenase. Later on it is converted into formic acid by aldehyde dehydrogenase. तो पहले तो क्या है कि ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म किस में होगा? फॉर्माल्डिहाइड में होगा. ठीक है, बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस. और बाद में फॉर्माल्डिहाइड का कन्वर्जन होगा फॉर्मिक एसिड में बाय द एंजाइम अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस. ओके, सो क्या होता है कि इफ देयर इज अ मिथेनॉल, इफ यू ड्रिंक मिथेनॉल अगर मैं ड्रिंक किया या फिर बाय मिस्टेक इथेनॉल में मिथेनॉल का अडल्ट्रेशन हो गया, आपने पी लिए, जैसे रॉ अल्कोहल में गावठी दारूमध्ये तेच होतं. So if you drink methanol, okay, what will happen? So it is converted into formaldehyde. So you know that formaldehyde is a very poisonous compound. Formaldehyde and later on converted into formic acid. Okay, so both are nothing but the very toxic compound, and because of that you may die. Okay, so that's why methanol poisoning leads to death. Okay, methanol is a poisonous. Ethanol is used in treatment of methanol poisoning ड्यू टू कॉम्पिटिशन टूवर्ड्स द अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस. सो इसमें क्या होता है कि मिथेनॉल के पॉइजनिंग में इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इथेनॉल एंड मिथेनॉल दे विल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर लिटिल बिट एंड दैट्स व्हाई इथेनॉल विल कॉम्पीट टूवर्ड्स द अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस. अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के लिए कॉम्पिटिशन करेगा होगा उसमें इथेनॉल में. इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल जाएगा वहाँ पे और इथेनॉल मेटाबोलाइज होगा. मिथेनॉल वैसे को वैसे रह जाएगा बॉडी में. और बाद में वो रिमूव कर सकते हो आप बाय डायलिसिस और बाय. बट इफ देयर इज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल, व्हाट विल हैपन? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड बोथ आर नथिंग बट द टॉक्सिक कंपाउंड. ओके, इन केस ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग ए स्पेसिफिक एंटीडोट इज अ फोमीपेजोल. सो इट इज अ एंटीडोट. फोमीपेजोल इज अ एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, आल्सो इथेनॉल पॉइजनिंग, आल्सो प्रोपिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग और इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग. ओके, now fomepizole is a 4-methylpyrazole derivative. 4-methylpyrazole. तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं 2-3 बार और ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस व्हिच डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म. आर यू गेटिंग माय वॉइस? नाउ नेक्स्ट वन इज इथिलीन ग्लाइकोल. So it is ethylene glycol is oxidized in the body by alcohol dehydrogenase and converted into glucoaldehyde. Ethylene glycol का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोआल्डिहाइड में होता है and then converted into glycolic acid by aldehyde dehydrogenase. Glycolic acid, glycolic acid and oxalic acid. Now step by step. Okay. Now fomepizole is the drug used in the treatment of poisoning. So remember, अल्कोहल का पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? फोमीपेजोल. So fomepizole is used in the treatment of alcohol poisoning of ethanol poisoning as well as methanol poisoning as well as ethylene glycol poisoning. Naltrexone is an approved drug for urgent comprehensive treatment program of alcohol dependence. ठीक है, डाइसल्फाम क्या है? इट इज़ अ डी एडिक्टिंग एजेंट. ये क्या होता है? डी एडिक्टिंग एजेंट. तो एडिक्शन के लिए ये यूज़ करेंगे. इट इज़ नॉट एंटीडोट. यहाँ पे बहुत सारे बाद में कंफ्यूज नहीं होना है. एंटीडोट क्या है?
पॉइजनिंग होने के बाद में कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे या फिर डिपेंडेंस के लिए कौन सा ड्रग? तो डायसल्फिराम इट इज़ नोन एज एंटा अब्यूज एंड इट इज़ यूज्ड इन द अल्कोहल डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस में यूज़ करते हैं। लत लग गई तो अल्कोहल छुड़ाने के लिए डायसल्फिराम यूज़ करना है। अल्कोहल का टॉक्सिटी हो गया तो फोमेपियाजोल यूज़ करना है, फोमेपिजोल, 4-methyl-pyrazole। ओके, ये एंटीडोट है, स्पेसिफिक एंटीडोट फोमेपियाजोल है। डायसल्फिराम इज नथिंग बट द इट इज़ अ ड्रग यूज्ड इन द अल्कोहल डिपेंडेंस। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है देखो यहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म सबसे पहले आपका क्या है, इथेनॉल। सो इथेनॉल is converted into acetaldehyde. Ethanol is converted into acetaldehyde by the enzyme alcohol dehydrogenase, which is present in the cytoplasm. So cytoplasmic enzyme होता है alcohol dehydrogenase। ये क्या करता है, ethanol is converted into acetaldehyde by this enzyme. Okay, now acetaldehyde is converted into acetic acid. Acetaldehyde is converted into acetic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase. By the enzyme aldehyde dehydrogenase. So sequentially metabolism होता है आपका इथेनॉल का। So initially ethanol is converted into acetaldehyde by the enzyme known as alcohol dehydrogenase, and then it is converted into acetic acid by the enzyme known as aldehyde dehydrogenase. So sequentially metabolize होता है। ठीक है, ethanol first, ethanol is converted into acetaldehyde by alcohol dehydrogenase in the cytoplasm. Then acetaldehyde is converted to acetic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase in the mitochondria. Remember, okay? Now, if there is increased alcohol in the body, if there is a raised alcohol in the body, so raised level of alcohol or ethanol in the body result in the okay, irritability, gait problem, ataxia, motor and mental. It affect the motor and mental function. There is a decreased motor coordination, it decrease the memory and decrease the reaction time and coma and death. So if there is toxicity of ethanol, ethanol बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ले लिए, ये होगा गेट प्रॉब्लम। मतलब आप खुद से खड़े नहीं हो सकते। एटेक्सिया होगा, मोटर इनकोऑर्डिनेशन, मेंटल फंक्शन अफेक्ट होगा, मेमोरी, रिएक्शन टाइम भी। मतलब है ना, आप कैच करो बॉल, मैंने आपको बॉल थ्रो किया तो आप इमीडिएटली कैच करते हो उसको, तो रिएक्शन टाइम देखो, मैंने बॉल आपकी तरफ फेंका, आपने कैच कर लिया। अगर वही आप इफ़ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, आपने ड्रिंक किया है, वो बॉल फेंकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक बॉल आपके मुंह पे लगेगा तब आपको पता चलेगा बॉल फेंका उसको। सो डिक्रीज रिएक्शन टाइम। ठीक है, सो इथेनॉल इफ इट इज कंज्यूम्ड इन अ हायर डोसेस लीड्स टू ओके दैट लीड्स सोशियबिलिटी प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम भी होता है आपको लोग ये ना समझते हैं। गेट प्रॉब्लम होता है, देन एटेक्सिया, मोटर, मेंटल फंक्शन, मेमोरी लॉस, रिएक्शन टाइम, कोमा एंड डेथ। फाइनली ethanol is metabolized into acetaldehyde. Now if there is increased level of acetaldehyde in your body, acetaldehyde के लेवल बढ़ गए तो क्या होगा, increased level of acetaldehyde causes nausea, vomiting, headache, hypotension, then inactivation of folate, okay, inactivation of folate and decreased vitamin B1 availability. तो जो अल्कोहलिक होता है उसमें विटामिन B1 थायमिन का डेफिशिएंसी 100% होता है। सो थायमिन डेफिशिएंसी इज देयर इन अल्कोहलिक पेशेंट, रिमेंबर। So increased level of this acetaldehyde in body as a result of metabolism of ethanol. So that leads to nausea, vomiting, headache, hypotension, inactivation of folate and vitamin. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? Now fomepizole is nothing but the specific antidote for alcohol poisoning. So it is a longer acting inhibitor of alcohol dehydrogenase. याद रखना है fomepizole क्या करता है? Fomepizole is nothing but the alcohol dehydrogenase inhibitor. So it is an antidote for alcohol poisoning. So it inhibits this enzyme alcohol dehydrogenase. So what will happen? So ethanol is not converted into acetaldehyde. So आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू acetaldehyde इज प्रिवेंटेड बाय। आपको ऑप्शन में देंगे फोमेपियाजोल, आपको ऑप्शन में देंगे डायसल्फिराम, ठीक है, आपको ऑप्शन में और एक दो ड्रग देंगे। सो रिमेंबर इथेनॉल ओके Fomepizole is nothing but the alcohol dehydrogenase inhibitor. ठीक है, it will prevent the conversion of alcohol into acetaldehyde. Now second होता है आपका acetaldehyde is converted into acetic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase in the mitochondria.
Now this step is emitted by disulfiram. What is disulfiram? Disulfiram is nothing but it is known as anti-abuse. It is known as anti-abuse drug. So it is used in the treatment of drug dependence. It is used in the treatment of alcohol dependence. अल्कोहल का एडिक्शन अगर हो गया तो उसमें ये यूज करेंगे डाइसल्फिराम. So it inhibits the aldehyde dehydrogenase and disulfiram prevent the conversion of what? Conversion of acetaldehyde into acetic acid. Fomepizole convert the conversion of ethanol into acetaldehyde. Remember difference क्या है देख लो. So fomepizole is alcohol dehydrogenase inhibitor and your disulfiram is nothing but the aldehyde dehydrogenase inhibitor. Now methanol का metabolism देखो. So methanol is converted into formaldehyde by the enzyme alcohol dehydrogenase. Now formaldehyde is converted into formic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase. Methanol is metabolized to the formaldehyde, and this formaldehyde, if there is a present in this body, so formaldehyde level if increased in the body will causes the metabolic acidosis, then ocular toxicity, respiratory failure. अगर मिथेनॉल आपने ले लिया तो पॉइजनिंग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मिथेनॉल का कन्वर्जन होता है फॉर्माल्डिहाइड में, फॉर्माल्डिहाइड बॉडी में. ठीक है. सो फॉर्माल्डिहाइड इन बॉडी कॉजेज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ocular toxicity and respiratory failure. Then this formic acid is converted to formic. Okay, this formaldehyde is converted to formic acid by aldehyde dehydrogenase. Right? Ethylene glycol का metabolism देखो. Ethylene glycol, so it is converted into glucoaldehyde by the enzyme alcohol dehydrogenase. Okay, so glucoaldehyde accumulation in the body causes CNS depression, metabolic acidosis and nephrotoxicity. Nephro मतलब kidney. This glucoaldehyde is converted into glycolic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase. So metabolism होता है sequentially. Glycolic acid is converted to oxalic acid and etc. So acidosis करेगा. Okay. So in the all like ethanol poisoning, methanol poisoning and ethylene glycol poisoning, fomepizole is an antidote and disulfiram is an anti-abuse drug. It is used in the dependence. You can see same thing over here again. So ethyl alcohol क्या है? It is so ethyl alcohol is used in the treatment of methanol poisoning, or ethanol is used in the treatment of methanol poisoning. Why? Because ethanol or ethyl alcohol will have structural similarity with the methanol. Okay, so ethanol is a preferred substrate for the alcohol dehydrogenase. तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के लिए इथेनॉल का जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है. सो इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, सो दैट मिथेनॉल will remain in the blood and it can be removed upon dialysis. That's why ethanol can be used in the poisoning of methanol, because they have similar structure and ethanol has a more affinity towards the alcohol dehydrogenase. Okay, so ethanol is converted into acetaldehyde. Ethanol is converted into acetaldehyde by alcohol dehydrogenase. Okay. 7 times the reaction is 7 times faster as compared to conversion of methanol into formaldehyde. So इसका जो है एफिनिटी ज़्यादा होता है मिथेनॉल का. acetaldehyde is converted into acetic acid by the enzyme aldehyde dehydrogenase. So in the similar way, formaldehyde, because of the metabolism, formaldehyde, which is a metabolic product of pure methanol, is converted into formic acid by aldehyde dehydrogenase. The fomepizole is nothing but the antidote for alcohol poisoning, which is alcohol dehydrogenase inhibitor, right? And disulfiram क्या है? Disulfiram is known as a drug used for the addiction. So it is a de-addicting agent or drug used in the alcohol dependence. So it is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है disulfiram, fomepizole. Okay, and both this acetic acid, formic acid result in the systemic acidosis, increase the carbon dioxide level in the body, and that decreases the folate dependent enzyme. And remember, also causes the vitamin B1 deficiency. So vitamin B1 deficiency is very common in the alcoholic patient. Okay, so I'll save this recording and